गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धास्सु ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं नन्दातीतं गगनसदृशं तत्मस्वदिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्ते। ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्ते। ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्ते। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। गणानाम गणपति गणेश लंबोदर सोहे भुजाचार एक दंत चंद्रमा ललाट राजे ब्रह्मा विष्णु महेश तालदय ध्रुपद गावे अति विचित्र गणानाथ आज मृदंग बजावे धट धराध धर धर कृधान दिन 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 नागे 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 धन धन तिन तिन ताके नाना तद्रिगण धृग धृग दिनागे दिनागे ता कृतक धरान तरान धा कृतक धरान तरान धा कृतक धरान तरान धा। In the course of my tabla riyaz 22nd February 2026 Sunday, I would love to share my tabla riyaz amongst all of you musicians, music lovers, my friends, brothers and sisters and other family members who those are well connected to me, who those are closely associated with me. So, dear friends, I always try my best to keep myself engaged, busy. I do not want to pass any leisure time. Either I used to spend my time with the spiritual subjects, literature, Bengali, Hindi, Urdu, English, literature, related subjects, or any gardening. My gardening is also hobby. Just now I poured water to my earthen plots, all the ornamental flowers and other ornamental plants. And then I get time to spend my time lovable tabla riyaz. I dedicate my tabla riyaz to the great legendary maestro wizard musicians of the world and our country in the past, who those were great musicians which I saw them right from the childhood, and still I used to witness, and I would love to share all those past musicians, music and tabla performances which I saw, legendary tabla masters right from Banaras, Patna, Delhi, wherever I used to attend all the Indian classical music, Hindustani Marga Sangit, all the conferences. While along with my parents, we were staying in Patna. After over my study, I started
organizing classical music concerts with the various eminent internationally reputed musicians, such as in the year my great concert in the year 83, I organized Ustad Ali Akbar Khan's night in the Patna big auditorium, that is Sri Krishna Memorial Hall, just situated near Gandhi Maidan. Pandit Shankar Ghosh, the tabla maestro Vijay, he accompanied Ustad Ali Akbar Khan. I recall he performed 2.5 hours Rag Puriya Dhanasri, followed by 8.5 beats, then 11 beats Chartal Ki Savari, then 16 beats, and other he rag also played. Before that, prior to 1983, I organized Pandit Ravi Shankar's during this Basant festival in the month of February, the same date, 5th February, I was closely associated with the organizers, big organizers of Patna. In the 82, Pandit Ravi Shankar and Ustad Allah Rakha. Pandit Ravi Shankar ji, he played Rag Basant Pancham. Then I recall, fantastically, he played sitar, and the auditorium was, in fact, I now recall 2,500 music lovers, audiences were present during the concerts. Same with the Ali Akbar Khan, which held in the year 1983. So I recall all the musicians, all the tabla maestros. I dedicate my riyaz to the lotus feet of my spiritual Guruji, Lord Swami Traksharanand Maharaj Ji. I inspired by his kind blessings, and all the mentors, gurus, music, elder brothers, friends, and philosopher, all musicians, with deep respect and humble submission, I offer my floral tributes to their lotus feet, and koti koti naman to their feet. I saw Pandit Kanthe Maharaj Ji of Banaras Gharana, many other tabla players, Pandit Shanta Prasad alias Gudai Maharaj, Pandit Kishan Maharaj Ji, Pandit Sharda Sahai, Pandit Lakshu Maharaj, all. Whenever I recall and I name the great musicians of our country, they were internationally reputed Indian classical musicians. I saw Pandit Gyan Prakash Ghosh Ji. He took talim from Ustad Masjid Khan and Pandit Gyan Prakash Ghosh, great disciple, tabla maestro, Pandit Shankar Ghosh, Pandit Kanai Datta, Pandit Shamul Bose, and other tabla players. Yesterday, I enjoyed the 100th birthday were observed of Bishnupur Gharana's great Sangitacharya, Pandit Amiya Ranjan Bandopadhyay of Bishnupur Gharana. In this way, I always used to engage myself. Now, dear friends, few tabla bowls of Banaras Gharana, Delhi Gharana. In Delhi Baj, I saw tabla performances of Pandit Ustad Latif Ahmed Khan. Actually, in fact, Pandit and these Ustad titles are given
recognized by the All India Radio. All India Radio, the Muslim candidates, if they achieve top graded title, top graded recognition from All India Radio, their this Ustad title is before using before his or her name. In fact, all the female singers, musicians, either vocalists or instrumentalists, they are named as Bidushi. And in the Hindu musicians, if they achieve top graded, Pandit name is using, and this Pandit name recognized by All India Radio. So dear friends, now here are few tabla bol.
exercise of all the 10 fingers. Any bowl which it just comes from your mind. Scientifically, the music is well connected with the brain. The brain, which scientifically, if the brain strikes you what to play, then uh, it must be that output of the anything, either the vocalist is singing, the brain which strikes, the brain always hits, though it is scientifically just well connected. That the brain, it says that you have to play with that bowl, then the bowl is producing.
The friends which are associated, and just now I see few friends are watching my Riyaj. Thank you, dear friends. Be happy, be healthy, be musically tuned, and be spiritually blessed. Yes. तक तेरे के तक लगा के कटोरी वाला तक कहते हैं। ता तेरे के तक तक तेरे के तक धीरे धीरे के तक ना के तक ता तेरे के तक तेरे के तक धीरे धीरे के तक। ये बनारस का बड़ा अच्छा ये था। ता तेरे के तक बहुत अच्छा। और हमारे फरुखाबाद के पंडित शंकर घोष जी ये धीरे धीरे गिट तक स्पीड में वो बजाया करते थे। हाँ, धा तेरे गिट तक धीरे धीरे गिट तक धा तेरे गिट तक तुन्ना गिट तक धा तेरे गिट तक धीरे धीरे गिट तक धा तेरे गिट तक दिन्ना गिट तक धा तेरे गिट तक तुन्ना गिट तक धा तेरे गिट तक धा तेरे गिट तक धा तेरे गिट तक धीरे धीरे गिट तक धा तेरे गिट तक तुन्ना गिट तक धा तेरे गिट तक धीरे धीरे गिट तक। और बजाते थे धा तेरे घेरे लगे धीरे धीरे घेरे लगे धा तेरे घेरे लगे धीरे धीरे। उनके हाथ से धीरे निकलता था। आहा, पंडित शांता प्रसाद जी का तबला में पंडित अनोखेलाल मिश्रा जी का तबला, धीरे धीरे गिटतक और नादिन दिना के वो बादशाह थे। ये सब पहले के तबला वादक लोगों का जो तबले की निकासी होती थी, फ्लेवर क्या कहना है। गुलाब का फूल जैसा वो निकासी होती थी, जैसा गुलाब का फूल खिल उठता है
अभी हिंदुस्तान में मैं अभी दो जनों का बहुत मैंने बड़ा अच्छा मुझे लगता है। एक तो पंडित सपन चौधरी के हाथ से जो निकासी होती है, बड़ा मेथोडिकली पंडित सपन चौधरी जी बजाते हैं। उनका 3-4 प्रोग्राम मैंने देखा अभी दिसंबर से लेकर फरवरी, कल वो चले गए अमेरिका। हाँ, एक धुरंधर तक भाई बनारस के हमारे कुमार भाई, कुमार दादा जो हैं, वो ज़्यादा हमसे बड़े नहीं है, एक साल के ही वो होंगे हमसे बड़े, लेकिन उनको भी मैं बहुत आदर करता हूँ, प्यार करता हूँ। पंडित कुमार बोस जी के हाथ से भी निकासी बहुत सुंदर होती है और वजनदार तबला उनके हाथों से निकलता है। बोल पंडित कुमार बोस जी में है वो चीज़ जो हाथों से उनका जो निकासी होता है भाई। बनारस घराना से तो उन्होंने तालीम लिया। उनके पिताजी भी बहुत बड़े तबला वादक थे, पंडित विश्वनाथ बोस जी। उनकी माताजी विदुषी भारती बोस जी सितार बजाती थी। पंडित कुमार बोस जी पंडित किशन महाराज जी से इतने करीब थे और उन्होंने काफ़ी उनसे कुछ सीखा। पंडित किशन महाराज जी भी एकदम बिल्कुल अपने पुत्र जैसा कुमारदा को प्यार करते थे और कुमार बोस जी को उन्होंने एकदम बिल्कुल अपने तहे दिल से उन्होंने उजागर कर दिया तबले का बोल बानी देकर। कुमार बोस जी सच में बहुत अच्छा तबला बजाते हैं। इसी तरह से मैं पंडित सपन चौधरी, कुमार बोस, अभी हमारे पंडित शंकर घोष जी के बड़ा ही अच्छा हमारा दोस्त है अरूप चटर्जी, जिनको भी अभी अरूप को भी टॉप ग्रेडेड मिल गया है, तो इस वजह से उसको भी पंडित अरूप चटर्जी बोल के ही लोग संबोधन करते हैं। लेकिन अरूप मेरे पास अरूप ही है, अरूप बहुत अच्छा बजा रहा है। तो इस तरह से मैं इन सबों का प्यार करता हूँ भाई। अरूप है, हमारे पंडित शंकर दादा के बहुत शागिर्द लोग अच्छा बजा रहे हैं। तो अभी ये हमारा भतीजा है ज्योति गुहो जी, हमारे बड़े पुराने दोस्त थे, उनका बेटा भी अच्छा काम कर रहा है, अपना ऑनलाइन वगैरह क्लास करता है। ये सौरभ गुहो है, उसको हम घर का उसका नाम है नयन, बहुत अच्छा मेहनत कर रहा है। किंसुक वगैरह है, बहुत अच्छा। सुब्रतो भट्टाचार्य, सुब्रतो सब है, ये लोग अच्छा बजा रहा है, अच्छा कर रहा है। अशोक दत्ता है, ये सब पुराना सब मेरा ये है। क्योंकि भाई मैं तो जो भी मन होता है वो बजाते रहता हूँ, बस मगन रहता हूँ एकदम बिल्कुल। हाँ, मगन रहना। और जो कुछ मैंने उन लोगों से सुना, सीखा तो कुछ नहीं, लेकिन जो कुछ आई सौंदर्य भैया, शास्त्रीय संगीत एक जन्म में, इट कांट बी कंप्लीटेड इन वन लाइफ। मैं बार बार कहता हूं, ये शास्त्रीय संगीत इतना आसान नहीं है। पढ़ लिख कर जज, बैरिस्टर, मजिस्ट्रेट, आईएएस अफसर, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, टीचर, जो भी बनना है बन जाइएगा, लेकिन भाई भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखकर एक रियल सेंस में संगीतज्ञ बनना बहुत मुश्किल है। संगीतज्ञ वही होता है। उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब का पुत्र देखिए, 72 साल की उम्र में वो चले गए, उस्ताद जाकिर हुसैन जी। उन्होंने तबले को इस तरह से दे दिया दुनिया को कि भाई लोगों को सोचना पड़ेगा तबला क्या चीज है। और तबले की पॉपुलैरिटी उन्होंने जो कर दिया सारे दुनिया में, वो कोई नहीं कर सकता है। पंडित शांता प्रसाद जी के बाद मैंने उस्ताद जाकिर हुसैन को ही देखा। बनारस के पंडित शांता प्रसाद जी थे जो बच्चा से लेके बूढ़ा तक उनका तबला पसंद करते थे और बहुत बहुत कम चीज बजाया करते थे अपने जैसा। वो इतना सुंदर डांस में भी बजाते थे, उसी तरह इंस्ट्रूमेंट में, वोकल में और तबला, स्वतंत्र तबला वादन में, सोलो तबला में तो पंडित शांता प्रसाद जी का जवाब ही नहीं था भाई। पंडित किशन महाराज जी बहुत लयदार तबला थे, वो लय के बादशाह माने जाते थे। इस तरह से हमने बनारस के काफी तबला वादकों को देखा। लक्ष्मू महाराज जी, इस तरह से समझिए, शारदा सहाय जी, पंडित अनोखेलाल मिश्रा जी, उनका पुत्र भी पंडित रामजी मिश्रा, बहुत अच्छा। और क्या नादिन निन्ना निकलता था, नादिन निन्ना और तक लगता है कि सांप जा रहा है एकदम।
फर्रुखाबाद के तबला, आप देखिए, घराना जो भी हो, मूल घराना तो तबले में दिल्ली बाज था, दिल्ली घराना, और पंजाब घराना भी ओरिजिनल घराना। तो पंजाब घराना के जो थे सब महान तबला वादक उस्ताद फिरोज खां साहब, जिनसे पंडित शंकर घोष जी ने भी तबला का तालीम लिया। पंडित शंकर घोष जी के प्रथम जो गुरु थे वो कहते थे मुझे, वो हमें काफी अपनी जीवनी कहानियां सुनाया करते थे। पंडित शंकर घोष जी और शांता प्रसाद जी के साथ मैंने बहुत टूर किया, क्योंकि मेरा एक ये था, क्या हॉबी था इन लोगों के साथ घूमना, और हमें भाई की तरह मानते थे और बहुत प्यार देते थे। शांता प्रसाद जी के साथ तो मैं मुंबई में कहाँ नहीं गया भैया, और मैं पंचमदा आडी बर्मन जी का दर्शन हुआ उनके जरिए, और समझिए बापी लहरी जी तो थे ही। तो इस तरह से बापी लहरी जी भी शांता प्रसाद जी से कुछ कुछ तबले का बोल उन्होंने सिखा, और इसी तरह से पुरानी बातों को मैं याद करते रहता हूँ। अपना तबला महासमुद्र है, शास्त्रीय संगीत ये बहुत मुश्किल चीज़ है। मैं जो भी सुन कर बजाने की कोशिश करता हूँ, उन लोगों को सुनते रहता हूँ। तो इसी तरह से समझिए कि दिल्ली बाज सबसे पुराना बाज है, दिल्ली घराना, और जो जहाँ तबला वादक लोग बस गए वहीं पर वो अपना घराना कायम हो गया। खलीफा लोग थे उस जमाने के, समझिए दिल्ली से निकलकर चले गए, एक खलीफा बुजुर्ग अजरारा में बस गए तो वो हो गया अजरारा घराना। इसी तरह एक खलीफा तबला वादक बस गए फर्रुखाबाद में। फर्रुखाबाद के थे उस्ताद मसीद खां साहब, जिनके सुपुत्र उस्ताद करामतुल्लाह खां, और करामतुल्लाह खां साहब के अभी जो उनके पुत्र हैं उस्ताद साबिर खां, ये सब इनका जनरेशन। साबिर खां का दो लड़का, वो हमारा काफ़ी अच्छा प्यारा मेरा भतीजा है, एक आरिफ है और अरमान है, ये सब बड़ा अच्छा। इस तरह से अभी अरमान का नाम लेते हुए मेरे देखिए याद आ गया, मेरा बहुत प्यारा दोस्त था उस्ताद राशिद खां, बहुत कम उम्र में बेचारा चल बसा, हमारे साथ काफ़ी मित्रता थी। उसका बेटा मैं यूट्यूब में सुनते रहता हूँ, अरमान खां, एकदम राशिद के जैसा उसका आवाज़ है। अरमान खां बहुत अच्छा गा रहा है। अल्लाह ताला से मैं गुजारिश करूँगा, ईश्वर से मैं प्रार्थना करूँगा उसे बरकत दे, उसे आशीर्वाद दुआ देते रहे। आप सभी शास्त्रीय संगीतकार लोग जितने भी हैं सब उसको, अरमान को सुनिए, बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा गा रहा है। और उस्ताद राशिद खां के मैंने नाना जी को भी सुना, काफ़ी उनसे भी काफ़ी हमें अच्छा मेल मिलाप था पंडित शंकर घोष जी के ज़रिए। उस्ताद नसार हुसैन खां साहब, तो इस तरह से काफ़ी देखिए गायन में भी तो जो कह रहे थे कि तबला में जो दिल्ली से निकल कर चले गए, जो अजरारा में बस गए तो अजरारा घराना, उसी तरह फर्रुखाबाद में आ गए फर्रुखाबाद घराना, लखनऊ में बस गए तो लखनऊ घराना हो गया। लखनऊ के सब बड़े बड़े तबला वादक लोग थे, हमारे उस्ताद आफाक हुसैन खां साहब थे, मेहदी हसन खां साहब थे तबला में। इसी तरह आप समझिए कि बनारस में आ गए, बनारस में प्रताप महाराज जी, जो उनके जनरेशन के पंडित शांता प्रसाद जी के सब उनके पिताजी थे पंडित बाचा महाराज जी, महान तबला वादक। इसी तरह पंडित बलदेव सहाय, पंडित भैरव सहाय, पंडित हरि सहाय जी के, पंडित किशन महाराज जी के जो पिताजी थे महान तबला वादक, पंडित किशन महाराज जी के बड़े चाचा जी थे ताऊ जी जिसे कहते हैं, पंडित कंठे महाराज जी। तो इस तरह से बनारस में जो बस गए, बनारस घराना हो गया। उसी तरह से मैं सिमिलरली मैं कहूँगा कोलकाता भी अब एक घराना बन चुका है, चूँकि हमारे पंडित ज्ञान प्रकाश घोष जी मसीद खां साहब से तबला
शिक्षा उन्होंने प्राप्त किया। और वो समझिए पंडित ज्ञान प्रकाश घोष जी जमींदार टाइप के थे, और उनके घर में सब शास्त्रीय संगीतकार लोग सारे देश से आया करते थे। जब भी कलकत्ता आते थे उनके घर रुकना है, उनके घर ठहरना है, उनके घर संगीत का कार्यक्रम सुबह से चलते रहता था। शियालदा में डिक्शन लेन में पंडित ज्ञान प्रकाश घोष जी का मकान, उनसे काफी उस मकान में हम गए भी हुए हैं। तो इस तरह से काफी पुरानी बातें याद आते रहती है। पटना के हमारे थे ये जो प्रसून बनर्जी, मीरा बनर्जी, प्रसून बनर्जी जी भी पंडित ज्ञान प्रकाश घोष जी के यहाँ रुके, उनसे तालीम लिए। उसके बाद फिर वो उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब से तालीम लिए। इसी तरह से पंडित प्रसून बनर्जी विदुषी, उनकी वाइफ मीरा बनर्जी तो बड़े गुलाम अली खां साहब की शिष्या। तो काफी ये सब पुरानी बातें याद आते रहती है। बनारस के पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जी, पंडित महादेव मिश्रा जी बहुत अच्छा ठुमरी गाया करते थे। बड़े रामदास मिश्रा जी हमारे पिताजी के फूफा लोग थे गया में, तो हमारे पिताजी बचपन में गया में, काफी पिताजी से काफी मित्रता थी लोगों की। बड़े रामदास जी मिश्रा उनका बेटा था, बहुत अच्छा हमारे घर पे काफी आया करते थे। गोवर्धन मिश्रा, पंडित गोवर्धन मिश्रा, ये लोग सब ठुमरी के बादशाह थे। बनारस के समझिए पंडित हनुमान मिश्रा जी जो राजन साजन मिश्रा जी के पिताजी हुए। इस तरह से अमरनाथ पशुपतिनाथ जी बनारस के, अभी हाल में इसी पिछले साल गुजर गए, 6 महीना उससे अधिक हो गया है, अब 8-9 महीना होते जा रहा है। पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी जो कि हमारे समझिए कि शास्त्रीय संगीत, मार्ग संगीत के एक जाने माने देश के पूरे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी शास्त्रीय गायक थे। और सबसे अधिक उनकी विशेषता थी वो ठुमरी के बादशाह कहलाते थे। ठुमरी के एकदम, ठुमरी, चैती, कजरी, दादरा, पूर्वी, जितने भी ये सब है वो सच में क्या उनके, और इतनी जानकारी उनको थी ठुमरी के विषय में। जब भी ठुमरी के संबंध में बताया करते थे कि देखिए ठुमरी में किस तरह से गाना, वीर रस का गाना, श्रृंगार रस का गाना, ठुमरी 4 प्रकार का किस तरह से विभाजन है, हाँ, खटका, मुड़की, गिटगिरी, पुकार, इस तरह से वो विश्लेषण करते रहते थे अपने गायन प्रदर्शन के माध्यम से जब भी वो बैठते थे गाना गाने। तो इस तरह से काफ़ी ये सब स्मरणीय सब घटनाएं हैं जो आप सबों के साथ साझा करते रहता हूँ। मुझे अच्छा लगता है, मैं गौरवान्वित महसूस करते रहता हूँ। शास्त्रीय संगीतकारों की जीवनी को लेकर आप सबों के बीच रूबरू करते रहता हूँ। तो इसी तरह से काफ़ी याद आते रहते हैं। और समझिए शंकर घोष जी के साथ काफ़ी मैं टूर किया कलकत्ता। कलकत्ता से वो आते, मैं पटना से जाता था, उस वक्त कलकत्ता भी आके उनके साथ हम एक साथ एक्कम्पनी किया। याद है बनारस 4 दिन का कॉन्फ्रेंस, फिर दिल्ली में हम गए, शंकर लाल म्यूजिक फेस्टिवल हुआ करता था और समझिए मॉडर्न स्कूल के ग्राउंड में होता था। अब पटना में तो शास्त्रीय संगीत इस तरह से पॉपुलर था, दुर्गा पूजा से लेकर दीपावली तक, दिवाली तक बिल्कुल शास्त्रीय संगीत हर मोड़ों पे ये ऑर्गेनाइज होता था। जितने भी शास्त्रीय संगीत के संगठन पटना में मौजूद थे उस जमाने में, अब समझिए कि 1990 तक खूब प्रोग्राम हुआ। 90 के बाद से फिर घटना शुरू हो गया। अब हमें याद है कि 3-3 सिटिंग में प्रोग्राम हुआ करता था, 3 प्रहर में, माने दोपहर 2 बजे से शुरू होती थी भारत माता मंडली का लंगटोली चौराहा। वहां पर चौराहे पर घेर कर बैरिकेड बनाकर और मंच बनाकर बिल्कुल वहां प्रोग्राम 4 दिन का होता था। षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी 4 दिन का शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम, कभी कभी पंचमी को भी शुरू हो जाता था। तो इस तरह से याद है भारत माता मंडली लंगटोली चौराहे पर, जो बाद में चलकर फिर 1979 में वो 80 में शिफ्ट होकर पटना कॉलेजिएट स्कूल के, जिस स्कूल से मैं पास किया, पटना कॉलेजिएट स्कूल के छात्र रहे डॉक्टर विधान चंद्र राय जो हमारे मुख्यमंत्री थे पश्चिम बंगाल के। तो उनका भी बाल्य जीवन पटना ही में बीता। उनके माताजी अघर प्रकाश कामिनी जी का नाम से अभी भी स्कूल विद्यालय है। तो इस तरह से काफी यादगार है। सर सीआर दास, पीआर दास पटना में थे। तो
काफी याद आ जाते हैं पटने के बारे में। पटना को जब भी स्मरण करता हूँ, नमन करता हूँ भाई पटना को, बिहार का राजधानी। और इसी तरह पटना जंक्शन स्टेशन स्थित हार्डिंज पार्क में शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम हुआ करता था। मुझे याद है 1975 में, उस वक्त खूब मैं तबला बजाया करता था। 75 में मन्ना दे साहब आए तो मन्ना दे का तबला प्लेयर नहीं आ पाया, बीमार पड़ गया। वो ऑर्केस्ट्रा में सब लोग थे, और दिनेश सिंगुरानी कहिए, ये इसके बाद टुनटुन जी आई थी, सब याद है मुझे, महमूद जी आए हुए थे। तो तबला वाला तो मुझे भी तबले में उनके साथ हाथ फेरना पड़ा, मन्ना दे साहब के साथ वो भाग मुझे प्राप्त हुआ। तो इस तरह से काफी स्मरणीय घटना सब है। और समझिए कि उस्ताद अली अकबर खान साहब जब आए 1983 में, तो वो 5 दिन पटना में रुके हुए थे। तो एक दिन तो रूम सेटिंग कार्यक्रम हुआ, तो शंकर घोष जी नेक्स्ट दिन आए, लेकिन उसके पहले दिन जिस दिन रूम सेटिंग हुआ, उस दिन मुझे बोले कि तुम बजाओ तबला मेरे साथ। तो वो बजवा लिए मुझसे, हम क्या बजाते, और उस्ताद अली अकबर खान साहब के साथ तबला संगत करने का भाग्य प्राप्त हुआ। इस तरह से पंडित रविशंकर जी भी इसी तरह घर में रियाज कर रहे थे, तो बोले कि तुम भी हमारे साथ रियाज करो। तो थोड़ा बहुत पंडित रविशंकर जी के साथ भी तबला रियाज करने का अहोभाग्य प्राप्त हुआ। इस तरह से काफी शास्त्रीय संगीतकारों के साथ बहुत। उस्ताद अमजद अली खान साहब आते थे पटना, प्रेसिडेंट होटल में पटना में रुकते थे। होटल में वो उनके साथ सुबह से काफी गपशपें हुआ करती थी, और उस्ताद जी कहते थे अगली बार आऊंगा तो तुम्हारे साथ बैठूंगा लेकिन उस्ताद अमजद अली खान साहब के साथ बैठने का मौका नहीं मिला। उसके बाद फिर इस तरह से काफी निर्मला अरुण जी के साथ मैं तबला बजाने का संगत किया महफिल में, रूम सिटिंग महफिल में। तो समझिए कि निर्मला अरुण जी के साथ तो मंच पर पंडित शंकर घोष जी ने धुआंधार तबला बजाया, और उनका जो था निर्मला अरुण जी का गाना इतना सुंदर, दादरा कजरी चैती गजल वगैरह बहुत अच्छा गाती थी। अभी भी याद है लाखों के बोल सहे, उसके बाद ये गंगा मैया तोहरी पियरी छरईव, इस तरह के सब गाने गाया करते थे। और गिरजा देवी का तो बात ही कुछ अलग था। उस वक्त बनारस से आया करती थी, कलकत्ता आई थी 79 में, जब ITC संगीत रिसर्च एकेडमी का जब स्थापना हुआ। तो उस वक्त याद है पंडित किशोर महाराज जी मुझे ले आए थे, चलो गौतम कि ITC संगीत रिसर्च एकेडमी का ये होता है। उस वक्त रवि किचलू, विजय किचलू जी थे, विजय किचलू जी भी गुजर गए, 3-4 साल हुआ। तो इस तरह से काफी पुरानी बातों को याद रखते रहता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह से पंडित श्यामल बोस जी भी क्या संगत किया करते थे। आहा, उस्ताद अमीर खान साहब तो गाने में पंडित श्यामल बोस को ही खोजते थे, उनके हाथ से जो ये धा निकलता था, धीन निकलता था, क्या बात है। पुरानी बातों को काफी याद करते रहता हूँ।
ये बनारस का था। धिक दिना तिकड़ दिना धागिना धिक दिना, ये पंडित शंकर प्रसाद जी उदय महाराज जी बहुत खूबसूरती के साथ वो बजाते थे। धिक दिना तिकड़ दिना धागिना धिक दिनारा। इसी तरह से नादी गदी पंडित शंकर घोष जी बजाया करते थे। क्या उनके हाथों से निकलता था, नादी गदी नाना घेना घेना धाती धादा तुन्ना नाती कति नाना घेना घेना धाती दादा तिन्ना। इसी तरह से पंडित शंकर घोष जी बजाते थे। मुझे याद है पंडित कंठे महाराज जी के शागिर्द और पंडित किशन महाराज जी के भी शिष्य थे पंडित कपिलदेव सिंह जी, दानापुर खगोल पटना के। वो इतना बढ़िया वो धागी न धा तिरकिट धागी न धा तिरकिट धा धा तिरकिट धागी न, और बोलों को भी बहुत खूबसूरती के साथ वो बजाया करते थे। बहुत विद्वान तबला वादक थे। धागी न धा तिरकिट धागी न धा तिरकिट धा धा तिरकिट धागी न धा तिरकिट धा धा तिरकिट धा इस तरह से समझिए कि पंडित शांता प्रसाद जी के हाथ से तो गुलाब का फूल खिलता ही था, तबले के हर बोलों को वो एकदम फूल खिला के ही छोड़ते थे। और उनका ये सब था धीरे धीरे गिट तक। उसके बाद धारे ताधे देटे धार कहते थे, दिल्ली का लाल किला है धारे ताधे देटे धार। उस तरह से धागे धिना गेना धागे तू ना गेना, धागे धिना गेना धागे तू ना गेना। हाँ, उन्होंने शोले में भी बजाया। बसंती, जब हेमा मालिनी बसंती का जो रोल अदा कर रही है, जब बग्घी लेके वो भाग रही है, तो क्या तबले का बोल वो निकासी था।
अब कभी कभी बहुत थकावट हो जाती है। अगर माइक लगा के सुना जाए तो बहुत आवाज तगड़ा हो जाएगा, और माइक्रोफोन लगा के सुनिएगा तो बहुत सुंदर आ जाएगा आवाज। इसी तरह से समय का सदुपयोग करते रहते हैं भैया।
Very disturbing elements. In the course, while practicing tabla, while on the riyaj, if any phone came, it is very disturbing. Oh, the people do not understand why they are unnecessarily calling. This bowl is धातेटे धातेटे धाधातेटे धागे थुन्ना केना. ये बनारस का ये बोल था. देखिए, फरुखाबाद वालों ने, ये पंडित शंकर घोष जी, ज्ञान प्रकाश घोष जी, इन्होंने बड़ा इसके साथ थोड़ा सा ऐड कर दिया. घेना नाना नातेटे धेटे धातेटे धागे तुना गेना, मेलोडी बढ़ गया. तो बोल था ओरिजिनली धातेटे धातेटे धाधातेटे धागे तुना केना, धातेटे धातेटे धागे तुना गेना. और पंडित शंकर घोष जी ने इसे ऐड किया. धातेटे धातेटे धाधातेटे धागे तुना घेना नाना नातेटे धागे तुना केना, धातेटे धातेटे धाधातेटे धागे तुना घेना नाना नातेटे. ये थोड़ा सा मधुर हो गया, मेलोडी बढ़ गई. और ये तेटे देखिए 2 उंगली से भी बजता है, ये 3 उंगली से भी बजता है तेटे, और वजनदार तेटे हो जाता है. फिर उल्टा तेटे भी बजता है. देखिए इस तरह से 2 उंगली वाला तेटे. अब बाया को अगर स्पॉन्टिन्यूअसली अगर छोड़ा नहीं जाए, बजाया जाए, तो और मधुर हो जाएगा. अब उल्टा तेटे देखिए. दमदार हो जाता है तेटे. इस तरह से बहुत अच्छा. और उदय महाराज जी, शांता प्रसाद जी, तेटे का जो उनसे निकासी होता था. आहा, धातेटे धातेटे तेटे धातेटे धातेटे तेटे. आहा.
I use my leisure time. हाँ, अब थोड़ा सा देखिए स्टीम इंजन आपको सुना दे, ट्रेन किस तरह से उस वक्त कोयले के इंजन में भारतीय रेल चलती थी। हम लोग भी सफर किए, आप सभी भी बचपन में आप लोग सफर किए, तो ट्रेन इंजन का आवाज देखिए किस तरह से। अब उस जब ब्रिज पर जब ट्रेन जा रही है, ये बिहार का सोन नदी का जो ब्रिज है उस पर से ट्रेन गुजर रही है। स्टेशन पर एकदम स्टीम इंजन अपने धीरे से रफ्तार में आ गई। इसी तरह से दोस्तों अब थोड़ा कहरवा पे आया जाए। कहरवा ताल, दादरा ताल से समापन करना है। फिर शास्त्रीय संगीत का एक कार्यक्रम है, शाम को 5 बजे जाना है कोलकाता के उत्तम मंचों पर। वो हमारा छोटा भाई है संदीप भट्टाचार्य, एकदम बहुत स्नेह आदर करके कहता आइए दादा। कल हम जा नहीं पाए, कल तो हम रामकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर विवेकानंद, जो स्वामी विवेकानंद के नाम से है ऑडिटोरियम, तो वहाँ शिरकत किए थे। 100 ईयर्स पूरा किए। संगीताचार्य विष्णुपुर घराना के महान धारक अमियो रंजन बंदोपाध्याय जी को, उनका कल जन्मदिन पर हम लोग सभी कोई मिलकर कोलकाता के सारे संगीत म्यूजिशियंस, म्यूजिक लवर्स लोग, हम लोग सभी लोग उनको श्रद्धांजलि, बधाई, शुभकामनाएं, ईश्वर से उनकी उम्र का, उनके स्वास्थ्य का हम लोगों ने विनती किया। इकट्ठे हम लोग दुआएं ईश्वर के पास हम लोग प्रार्थनाएं रखी। बहुत अच्छा लगा कल का कार्यक्रम। और उन्होंने करीब 35-40 मिनट गाना भी गाया, विलंबित ख्याल, उसके बाद तीन ताल में भी। समर साहा, पंडित समर साहा, समर दादा भी बहुत अच्छा तबला संगत करते हैं। ये हमारे कृष्ण कुमार गांगुली जी, नाटू बाबू जी ने कहा जाता था, उनसे उन्होंने तबला शिक्षा प्राप्त किया। नाटू बाबू के और भाई साहब थे पंडित हीरू गांगुली, वो हमारे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी करते थे, बैरिस्टर थे। हीरू बाबू हमारे पिताजी से काफी अच्छा उनका मेल मिलाप था।
थोड़ा सा दामने में आ जाए। इसी तरह से अब पूर्ण विराम करना पसंद करूंगा। लगभग 1 बजने जा रहे हैं, तो हो गया कम से कम 2 घंटा रियाज। बस इसी तरह से आप सबों के साथ जुड़े रहते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। तो शेष में फिर आप सबों को बस गुरु वंदना और शांति मंत्र पाठ कर आज पूर्ण विराम करूंगा ही। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं नन्दातीतं गगनसदृशं तत्मस्वतिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदिशाक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री श्री गुरु महाराज जी की जय।
जय महामाई की जय, जय माँ गंगा माई की जय, जय भागवत भक्त भगवान की जय। आप सबों को धन्यवाद। हमारे बीच पंडित जयराम प्रभु मुक्ति जी हैं। प्रभु जितने भी हमारे दोस्त लोग हैं सबों को मैं अलग से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सब स्वस्थ में, आनंद में, सुख में, अध्यात्म में, शांति में जीवन व्यतीत करें, मैं ईश्वर से प्रार्थनाएं गौतम कोमल गांधार उर्फ गौतम बंदोपाध्याय कोलकाता की ओर से ईश्वर के पास ये प्रार्थनाएं रहेगी और आप सब आनंदित रहे बस। हे प्रभु, जय भारत, जय बांग्ला, जय कोलकाता का जय हो।